Hello friends, welcome all of you in our channel. We will continue learn and discuss about Rapidex English Speaking Course Part 7. Their test paper. Test 1. Question 1. Translate the following sentence into Hindi. 50 नंबर का है, एक जो है 1 नंबर का है. Who are, where you there? Who is there at the door? There was a king. How much petrol is there in your car? Until when were you there in office? There is a book on the bed. How many students were there in the class? Is there money in your pocket? No one is there. There is a boy standing. Is someone there? There were 29 people in total. Why were you there? With whom is he there? There was a lion in the forest. There is a ghost whose name is Rahul. When you were there, I was not there. There were 50 students in that class. There is a phone call for you. A friend of yours is there at the door. There is no Rahul in my class. There is no There are no pen in my bags. How much is there in your pocket? How many stars are there in the sky? His dad is there with my dad. His sister is there in Japan. There is a tap in his kitchen, which is very old. 28. There is a boy with him who is very thin. There is a girl in his class for whom he is mad. There is no friend of mine in this photograph. 31. Is there any friends of yours in this photograph? There are numerous hotels in Shimla. There is a beautiful lake in Missouri. There is a laptop on my bed. Is there a mobile on my table? There is no letter underneath the pillow. There is no one standing ahead of me. How many people are there next to you? Ram is there in the car. There is a bridge over the Yamuna river. How many books are there in your bag? Nothing is there. 43. Nobody is there in your room. 44. Some people are there eating the food. 45. My life is there in you. If you are not there, then nothing is there. 46. I am always there with you. 47. The condition is pathetic there. My dad was never there. Weather conditions were phenomenal there. How many brothers of yours were standing there? Answers. Were you there? क्या तुम थे? Who is there at the door? दरवाजे पर कौन है? There was a king. एक राजा था. वहाँ एक राजा था. How much petrol is there in your car? तुम्हारी कार में कितना पेट्रोल है? Until when were you there in office? तुम ऑफिस में कब तक थे? There is a book on the table. बिस्तर पर एक किताब है. How many students were there in the class? क्लास में कितने बच्चे थे? Is there money in your pocket? क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं? No one is there. वहाँ कोई नहीं है. There is a boy standing. एक लड़का खड़ा है. वहाँ एक लड़का खड़ा है. Is someone there? क्या कोई है? There were 29 people in total. कुल मिलाकर 29 लोग थे. Why were you there? तुम वहाँ क्यों थे? With whom is he there? वो वहाँ किसके साथ हैं? There was a lion in the forest. उस जंगल में एक शेर था. There is a ghost whose name is Rahul. वहाँ एक भूत है जिसका नाम राहुल है. When you were there, I was not there. जब तुम थे, मैं नहीं था. There were 50 students in the class. उस क्लास में 15 बच्चे थे. There is a phone call for you. तुम्हारे लिए एक फोन कॉल है. A friend of yours is there at the door. तुम्हारा कोई दोस्त दरवाजे पर है. There is no Rahul in my class. मेरी क्लास में कोई राहुल नहीं है. There are no pen in my bag. मेरे बैग में पेन नहीं है. How much is there in your pocket? तुम्हारी जेब में कितना है? How many stars are there in the sky? आसमान में कितने तारे हैं? His dad is there with my dad. उसके पापा मेरे पापा के साथ हैं. Here her sister is there in Japan. उसकी बहन जापान में है. There is a tap in his kitchen.
विच इज वेरी ओल्ड, उसके किचन में एक नल है जो बहुत पुराना है। देयर इज ए बॉय विथ हिम हु इज वेरी थिन, उसके साथ एक लड़का है जो बहुत पतला है। देयर इज ए गर्ल इन हिज क्लास फॉर होम ही इज मैड, उसकी क्लास में एक लड़की है जिसके लिए वो पागल है। देयर इज नो फ्रेंड्स ऑफ माइन इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटो में मेरा कोई दोस्त नहीं है। इज देयर एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इन दिस फोटोग्राफ, क्या इस फोटो में तुम्हारा कोई दोस्त है। देयर आर न्यूमरस होटल इन शिमला, शिमला में कोई होटल है। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक इन मैसूरी, मैसूरी में एक सुंदर झील है। देयर इज ए लैपटॉप ऑन माई बेड, मेरे बिस्तर पे एक लैपटॉप है। इज देयर मोबाइल ऑन माई टेबल, क्या मेरे टेबल में कोई मोबाइल है। देयर इज नो लेटर अंडरनेथ द पिलो, तकिए के नीचे कोई पत्र नहीं है। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ माई मी, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है। हाउ मैनी पीपल आर देयर नेक्स्ट टू, तुम्हारे बगल में कितने लोग हैं। राम इज देयर इन द कार, राम कार में है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द यमुना रिवर, यमुना रिवर के ऊपर एक पुल है। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं। नथिंग इज देयर, वहाँ कुछ नहीं है। नोबॉडी इज देयर इन योर रूम, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है। सम पीपल आर देयर ईटिंग द फूड, वहाँ कुछ लोग खाना खा रहे हैं। माई लाइफ इज देयर इन यू, मेरी जिंदगी तुम में है। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। द कंडीशन इज पैथेटिक देयर, वहाँ हालत बहुत बुरी है। माई डैड वाज नेवर देयर, मेरे पापा वहाँ कभी नहीं थे। वेदर कंडीशन वे आर फिनोमिनल देयर, मौसम बड़ा जबरदस्त वहाँ है। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर वे आर स्टैंडिंग देयर, तुम्हारे कितने भाई वहाँ खड़े थे। टेस्ट नंबर 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उस घर में एक छोटा बच्चा था, वहाँ कुछ नहीं था शायद, बाल्टी के नीचे कुछ है, सभी लोग वहाँ आगे होंगे। क्या मेरा भाई वहाँ होगा। वहाँ पहनने को कुछ नहीं है, कहने की जरूरत नहीं। जब कभी तुम थे राम नहीं था, उसके भाई के दिल में कोई बात नहीं है, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। कितने लोग हैं, कुछ हैं क्या, उस घर में कुछ है, कितना पैसा था, तुम किसके साथ थे, इस दिल में क्या है कौन जानता है। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, दरवाजे पर कौन था, घर में कितने लोग हैं, मन में क्या है तुम्हारे, कंप्यूटर में कितने गेम हैं। राम और श्याम के बीच में कौन है, मेरे आगे कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे कौन था, राम के साथ कौन है, पापा के सामने मम्मी थी, मेरे बगल में कोई है क्या, एक आदमी खड़ा है, कोई लड़की है, कई बात है जो मैं जानता हूँ। प्यार में दूरियां नहीं होती, दोस्ती में थैंक्स नहीं होता, हमारे बीच कुछ नहीं है, नल में पानी नहीं है, दिल को प्यार है। तुम्हारे दिल में क्या है, कमरे में खिड़कियां हैं, पैन में स्याही है, कार में पेट्रोल था, उसके दिल में बहुत दर्द है, उसकी आवाज में जादू है, तुम्हारे गाने के तरीके में कुछ तो बात है, कुछ और भी है। महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातें कोटेशंस। वन मे बी वाइज टू बिलीव दैट आई कैन फेल 1000 टाइम बट ही वुड बी अ फूल टू बिलीव दैट आई विल नॉट ट्राई अगेन। उसे समझदार कह सकते हैं जिसे यह विश्वास हो कि मैं 1000 बार फेल हो सकता हूँ, पर वो मूर्ख होगा जो ये सोचे कि मैं दोबारा प्रयास नहीं करूँगा। Every single time when I failed, I convinced myself just for one more try. I kept doing it and eventually I won. हर एक बार जब मैं हारा तो मैंने अपने आप को मनाया, बस एक बार और, मैंने हर बार ऐसा ही किया और आखिरकार मैं जीत गया। Never promise that you can't keep. अगर आप निभा नहीं सकते तो वादा कभी मत करो। Men are not those who are made by circumstances, but those who change the circumstances. इंसान वो नहीं जिन्हें हालत बदल देते हैं, इंसान तो वो है जो हालत ही बदल देते हैं। आंसर, उस घर में एक छोटा बच्चा था, दैट मीन्स देयर वाज ए स्मॉल किड्स इन दैट होम, वहाँ कुछ नहीं था शायद, परहैप्स प्रोबेबली देयर वाज नथिंग, बाल्टी के नीचे कुछ है, देयर इज समथिंग बीनेथ द बकेट, सभी लोग वहाँ होंगे, ऑल द पीपल विल बी देयर, क्या मेरा भाई वहाँ होगा, विल माई ब्रदर बी देयर, वहाँ पहनने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू वेयर, कहने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू से, जब कभी तुम थे राम नहीं था, व्हेनेवर यू वेयर देयर राम वाजंट देयर, उसके भाई के दिल में कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग इन हिज ब्रदर्स हार्ट, बात करने की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू टॉक, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, देयर आज नथिंग एज सच बिटवीन अस, कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर, कुछ हैं क्या, इज देयर समथिंग, इज समथिंग देयर,
उस घर में कुछ है, देयर इज समथिंग इन दैट हाउस, कितना पैसा, हाउ मच मनी वाज देयर, तुम किसके साथ थे, विथ होम वेयर यू, इस दिल में क्या है, कौन जानता है, व्हाट इज इन दिस हार्ट, हु नोज, एक राजा था, उसकी 3 रानियां, देयर वाज ए किंग, ही हैड 3 क्वींस, दरवाजे पर कौन था, हु वाज देयर एट द डोर, घर में कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर एट होम, मन में क्या है तुम्हारे, व्हाट इज देयर इन योर माइंड हर्ट, कंप्यूटर में कितने गेम हैं, हाउ मैनी गेम्स आर देयर इन कंप्यूटर, राम और श्याम के बीच में कौन है, हु इज देयर बिटवीन राम एंड श्याम, मेरे आगे कोई नहीं है, नो बॉडी इज देयर अहेड ऑफ मी, तुम्हारे पीछे कौन था, हु वाज देयर बिहाइंड यू, राम के साथ कौन है, हु इज देयर विथ राम, पापा के सामने मम्मी थी, देयर वाज मॉम इन फ्रंट ऑफ डैड, मेरे बगल में कोई है क्या, इज समवन देयर बिसाइड मी, एक आदमी खड़ा है, देयर इज ए मैन स्टैंडिंग, कोई लड़की है, देयर इज ए सम गर्ल, देयर इज ए गर्ल, कोई बात है जो मैं जानता हूँ, देयर आर लॉट मैनी थिंग्स सेक्रेट दैट आई नो, प्यार में दूरियां नहीं होती, देयर आर नो डिफरेंस इन लव, दोस्ती में थैंक्स नहीं होता, देयर इज नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप, हमारे बीच कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बिटवीन अस, नल में पानी नहीं है, देयर इज ए नो वाटर इन दैट टेप, दिल को प्यार है, देयर इज ए लव इन हर्ट, तुम्हारे दिल में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर हर्ट, कमरे में खिड़कियां हैं, देयर आर विंडोज इन द रूम, पेन में स्याही नहीं है, देयर इज नो इंक इन द पेन, कार में पेट्रोल था, देयर वाज पेट्रोल इन द कार, उसके दिल में बहुत दर्द है, देयर इज सो मच पेन इन हिज हार्ट, उसकी आवाज में जादू है, देयर इज ए मैजिक इन हिज वॉइस, तुम्हारे गाने के तरीके में कुछ तो बात है, देयर इज समथिंग इन योर वे ऑफ सिंगिंग, कुछ और भी है, समथिंग एल्स इज देयर, लेसन एट टीच, पोजीशन सेंस, स्थिति का ज्ञान, बगल में, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, एडजेसेंट, बेसाइड, आगे, अहेड ऑफ, पीछे, बिहाइंड, सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, दाईं ओर, राइट टू द राइट ऑफ, बाईं ओर, लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ, बगल में, दाईं ओर, इमीडिएट, राइट टू, बगल में, बाईं ओर, इमीडिएट, लेफ्ट टू। आइए नीचे दिए गए क्लास लेआउट की मदद से समझें, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लास लेआउट। दिव्या, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, शालिनी, नितिन, तरुण, राम, मयंक। ऊपर एक क्लास लेआउट दिया गया, टीचर का चेहरा बच्चों की तरफ है, क्लास में बच्चे 2 लाइन में बैठे हैं, हर लाइन में 5 बच्चे हैं। ए क्लास लेआउट is given a boy, teacher is facing the students are sitting in 2 rows, there are 5 students in each row। अगर पूछा जाए कि दिव्या के दाईं ओर कौन बैठा तो शायद आप कहेंगे रश्मि, ये बात सही है कि रश्मि वाकई दिव्या के दाईं ओर बैठी है, पर मसूद, जुनैद और संदीप भी तो दाईं ओर ही बैठे हैं, फिर आपने सिर्फ रश्मि का ही नाम क्यों लिया? सही उत्तर होना चाहिए दिव्या के दाईं ओर रश्मि, मसूद, जुनैद और संदीप बैठे हैं। हाँ, अगर ये पूछा जाता कि दिव्या के बगल में दाईं ओर कौन बैठा है तो आप कहेंगे रश्मि, यहीं से जन्म हुआ, इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट लेफ्ट। If asked who is sitting right to Divya, you would probably answer Rashmi. Rashmi is certainly to the right of Divya, but what about Masood, Junaid and Sandeep? Aren't they sitting to the right of to Divya too? Yes, there are. So ideally, you should be taken their names as well. If you are asked who is sitting immediate right to Divya, then you must answer Rashmi. बगल में दाईं ओर immediate right to, बगल में बाईं ओर immediate left to। कंफ्यूजिंग बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ पर करना है। सोचिए, आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, आपकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए उसकी पीठ आपकी तरह है, इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे, और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड है। सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। इस स्थिति में वो व्यक्ति आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ है। इस स्थिति के लिए बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह आपको पता लग गया कि बिफोर के 2 अर्थ होते हैं, एक है पहले और दूसरा है सामने। बगल में, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। आइए कुछ उदाहरण पर गौर करें।
Let's pay attention to a few examples. टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं. टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट. रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी. रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या. मसूद तरुण के आगे बैठा. मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण. राम मयंक के बगल में बैठा है. राम इज सिटिंग एडजेसेंट नेक्स्ट टू बेसाइड मयंक. नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है. नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण. शालिनी श्याम की बाईं ओर बैठी. शालिनी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम और शालिनी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम. मयंक संदीप के पीछे बैठा है. मयंक इज सिटिंग बिहाइंड संदीप. राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है. राम इज सिटिंग बिहाइंड तरुण एंड मयंक. मसूद रश्मि और जुनैद के बीच में बैठा है. मसूद इज सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद. दिव्या शालिनी संदीप और मयंक बिल्कुल कोने में बैठे हैं. दिव्या शालिनी संदीप एंड मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर. पोजीशन सेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज. आइए अभ्यास करें. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए. लेट्स प्रैक्टिस ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. तुम मेरे बाईं ओर हो. क्या राम तुम्हारे सामने था? मैं उसके आगे खड़ा था. राम के आगे कितने लोग हैं? बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं. तुम्हारे बाईं ओर कौन है? मेरे बगल में दाईं ओर सीता बैठी है. सीता के बगल में बाईं ओर एक लड़का है. मैं तुम्हारे पीछे था. उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं? राम एक कोने में बैठा है. मेरे बाईं ओर कोई खड़ा नहीं था. राहुल मेरे ठीक सामने था. क्या मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है? मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है. मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है. रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं? सीता के बाईं ओर कितने लड़के हैं? मेरे दाईं ओर कोई नहीं है. क्या तुम्हारे दाईं ओर कोई है? क्या तुम्हारे बाईं ओर कोई नहीं है? क्या तुम्हारे आगे कोई है? क्या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है? क्या तुम्हारे सामने कोई है? क्या तुम्हारे बगल में कोई है? लाइक दैट. हम बाईं ओर खड़े थे. हम बाईं ओर खड़े थे. हम दाईं ओर खड़े थे. सीता क्लास में अकेली थी. राम वहाँ पर नहीं था. दिल्ली भारत के उत्तर में है. केरल भारत के दक्षिण में है. बंगाल भारत के पूरब में है. उसके सामने कौन था? मेरे आगे लाइन में 3 लोग खड़े थे. राम के आगे 2 आदमी थे. मेरे पीछे लाइन में कितने थे? मेरे जूते कमरे के एक कोने में पड़े थे. तुम्हारे जूते के सामने वाले जूते मेरे हैं. वो तुम्हारे किस तरफ हैं? वो मेरे दाईं ओर हैं. दाईं ओर तो ठीक है, पर वो क्या बगल में है? हमारे बीच लड़कियां हैं. सीता और गीता के बीच में कितने हैं? रोहन के बगल में कौन है? सीता के बगल में कोई नहीं है. राम आगे है और मैं पीछे. तुम दाईं ओर थे. तुम्हारे पीछे कौन है? कोई नहीं है. मैं किस दिशा में हूँ? तुम इस वक्त उत्तर की ओर जा रहे हो. कोटेशन. महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें. सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक, बट इन नेवर मिस्टेक द सेम वन अ सेकेंड टाइम. Time waits for none. To success in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Answer. You are right to me. Was Ram in front of me? I was standing ahead of him. How many people are there ahead of Ram? Teacher is standing just in front of the student. Who is to the left of you? Who is left to you? Sita is sitting immediate right to me. A boy is immediate left to Sita. A boy is to the immediate left of Sita. I was behind you. How many people are standing behind him? Ram is sitting in a corner. Nobody was standing to the left of me. Was Rahul exactly in front of me? Your house is in front of my house. My house is just ahead of yours. My house is just behind yours. How many people are there to the right of Rohit? How many boys are there to the left of Sita? Nobody is to the right of me. Nobody is right to me. Is there someone to the right of you? Is there no one to the left of you? Is there someone ahead of you? Is there no one behind you? Is there someone in front of you? Is there someone next to you? Is there someone adjacent you? Is there someone beside you? We were standing on the left. We were standing on the right. Sita was alone in the class. Ram wasn't there. Delhi is to the north India. Delhi is the northern India. Kerala is to the south of India. Kerala is in the southern India.
Bengal is the east of India. Bengal is in the eastern India. Who was in front of him? Her. There were three people standing ahead of me in the queue. There were two men ahead of Ram. How many were there behind me in the queue? My shoes were laying in the corner of the room. The shoes in front of your shoes are mine. In which direction from you is he? In which direction is he from you? He is to the right of me. Right side is fine, but is he adjacent? There are two girls between us. How many are there between Sita and Gita? Who is beside Rohan? Nobody is beside Sita. Ram is ahead of me. I am behind Ram. You were on the right. Who is behind you? No one. In which direction am I? You are going toward north at the moment. Like this. Position sense test paper test 1. 1 to 20 answer the question below. Teacher Pooja, Madam Anjali, Vikrant, Aditya, Archana, Yes, Yasi, Benita, Aman, Amit, Kuldeep, Dimple, Seema, Soni, Ayushi, Abhishek, Kalpana. Who is sitting next to Ayushi? Who is sitting next to Seema? Who is sitting immediate right to Kalpana? Who is sitting adjacent Kuldeep? Where is a Pooja Madam standing? How many people are sitting right to Vikrant? Who is sitting behind Archana? Who is sitting right to Benita? Who is sitting immediate left to Yasi? Who is sitting beside Aman? Who are sitting at corner? Who are sitting at the extreme right? Who are sitting at the extreme left? Where is Anjali sitting? Who is sitting right to Dimple? Who is sitting immediate left to Abhishek? Who is sitting left to Soni? Who are sitting in row number 2? Who are sitting in column number 4? Who are sitting in column number 1? Answer. Who is sitting next to Ayushi, Soni and Abhishek? Who is sitting next to Seema, Soni? Who is sitting immediate right to Kalpana? Nobody. Who is sitting adjacent Kuldeep, Amit and Dimple? Where is Pooja Madam standing in front of a student? How many people are sitting right to Vikrant, Aditya, Archana and Yasi? Who is sitting behind Archana? Kuldeep. Who is sitting right to Vinita, Aman, Amit, Kuldeep and Dimple? Who is sitting immediate left to Yasi? Archana. Who is sitting behind Aman, Vinita and Amit? Who are sitting at corner? Anjali, Yes, Seema and Kalpana. Who are sitting at the extreme right? Yasi, Dimple and Kalpana. Who are sitting at the extreme left? Anjali, Vinita and Seema. Where is Anjali sitting? First row, extreme left corner. Who is sitting right to Dimple? Nobody. Who is sitting immediate left to Abhishek? Ayushi. Who is sitting left to Soni? Seema. Who are sitting in row number 2? Vinita, Aman, Amit, Kuldeep, Dimple. Who are sitting in column number 4? Archana, Kuldeep, Abhishek. Who are sitting in column number 1? Anjali, Vinita and Seema. महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें कोटेशंस. Be nice to people on your way up because you meet them on your way down. उपलब्धियों की तरफ बढ़ते हुए जो भी मिले उसे इज्जत दो, क्योंकि अगर कभी नीचे आना पड़ा तो आप उन्हीं से मिलोगे. Never waste what you have for something that you don't have today. Remember what you have now you had desired someday. जो आज है उसे व्यर्थ मत जाने दो उसकी चाहत में जो आज नहीं, क्योंकि याद रहे जो आज है उसकी चाहत भी आपने कभी की थी. It doesn't matter how much you possess. What matter is who earned it. You are your ancestor. ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना है, मायने ये रखता है कि कमाया किसने, आपने या आपके पूर्वजों ने. लेसन 19 टेंस काल. टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है. कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है. यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल व भविष्य काल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं भिन्न होती हैं. एक महत्वपूर्ण टॉपिक है. इस चैप्टर को अच्छी तरह समझे बिना आप अंग्रेजी में कभी पकड़ नहीं बना सकते. हमने प्रयास किया है कि हम आपको हर रूल बारीकी से समझाएं और आपसे यही उम्मीद है कि आप कोई कसर न छोड़ें. शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट.
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट का कंसेप्ट, सेंटेंस के टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं। 5वां WH फैमिली। ऊपर दिए गए पहले 3 कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 2 में विस्तार से समझाए गए हैं। चौथा कॉन्सेप्ट वर्ब चैप्टर में आखिरी कॉन्सेप्ट WH फैमिली चैप्टर में विस्तार समझाया गया। पहले इन्हें अच्छी तरह समझ ले, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े ताकि आपको इस चैप्टर में दिए गए नियम आसानी से समझ में आ सके। नीचे दी गई दोनों टेबल इन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए के उदाहरण है। टेबल नंबर 1 एग्जाम्पल, सेंटेंस एंड देयर पार्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, राम घूमता है, राम सब्जेक्ट है, मेन वर्ब घूमना है। लोग नाच रहे हैं, लोग सब्जेक्ट है, नाचना मेन वर्ब है। हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट है, मेन वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट टीवी। मुझे घड़ी मिली है, सेंटेंस, मुझे सब्जेक्ट है, मिलना यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट घड़ी है। गिलास में पानी निकल रहा है, गिलास से पानी निकल रहा है, सब्जेक्ट पानी, मेन वर्ब निकलना, ऑब्जेक्ट गिलास। महान व्यक्ति द्वारा कही गई बातें, कोटेशन, वी मस्ट विन द फाइनल वार इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मैनी बैटल्स वी हैव लॉस्ट बिफोर। फर्क नहीं पड़ता कितनी लड़ाइयाँ हम पहले हार चुके हैं, हमें अंतिम युद्ध जीतना है। टेबल नंबर 2 एग्जाम्पल, सेंटेंस टाइप। अफर्मेटिव सकारात्मक, एग्जाम्पल 1 मुझे घड़ी मिली है, एग्जाम्पल 2 लोग नाच रहे हैं, एग्जाम्पल 3 राम घूमता है। नेगेटिव नकारात्मक, मुझे घड़ी नहीं मिली है, लोग नाच नहीं रहे हैं, राम नहीं घूमता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या मुझे घड़ी मिली है, क्या लोग नाच रहे हैं, राम किसके साथ घूमता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं, क्या राम नहीं घूमता है। वाई फैमिली WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुझे घड़ी कहाँ मिली है, मुझे घड़ी कैसे मिली है, लोग क्यों नाच नहीं रहे हैं, लोग कब से नाच रहे हैं, राम किसके साथ घूमता है, राम क्यों नहीं घूमता। लाइक दैट। टेंस टाइप। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। ईच वन हैज 4 सब टाइप्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रियाएं उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती हैं। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब रेफर टू द टाइम of the action in a sentence, hence it can be classified in 3 categories. Tense, present tense helping verb do, does, is, am, are, has, been, have been. Past tense helping verb did, was, were, had been. Future tense helping verb will be, will have been. Note, अब हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राय नहीं किया जाता। महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, कोटेशन से। गुड थिंग्स कम टू पीपल हु वेट, बट बेटर थिंग्स कम टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता आज। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रोल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता। ओनली इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी मस्ट यूज यस और ईएस विद द मेन वर्ब और एल्स बी मसंट। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सिंगुलर, पर्सनल, प्लूरल कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत है तो लेसन 2 दोबारा पढ़िए। अभी जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ यस और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होगा। अगर आप ये जान ले कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होगा तो ये स्पष्ट हो जाए कि बाकी बची हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ यस का प्रयोग होगा। नाउ द क्वेश्चन इज when to put yes and when to put es with the main verb. If we let you know when to put es with the main verb, then it would be understood that the rest would be yes. Let's understand with the help of following table. When to put es with main verb, मुख्य क्रिया के साथ es कब लगाएं। रोज, with
द मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अक्षर ओ हो, गोज, डोज, etc. विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ एस, डबल एस और एस एच, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच आए, जैसे कीसेस, मीसेस, पैसेस, पुसेस, रूसेस, etc. विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ एक्स, डबल जेड और सी एच, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एक्स, डबल जेड या सी एच हो, फिक्स, रिलैक्सेस, बजेस, कैचेस, रेचेस, etc. With the main verb ending with consonant plus y, such main verb end with y, but y is preceded by a consonant, i.e. b, c, d, f, g, etc. In such case, the first change y to I and then put es. Carry, cries, marry, marries, try, tries, fly, flies. जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन y हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत तो y से हो, लेकिन y से पहले कोई व्यंजन हो, जैसे b, c, d, f, g आदि, ऐसे में होता यह है कि सबसे पहले तो y को बदला जाता है I में, उसके बाद es का प्रयोग होता है। A simple case of not using es, when not to put es with main verb, मुख्य क्रिया के साथ es कब न लगाएं। With the main verb ending with vowel plus y, such main verbs end with y, but y is preceded by a vowel, i.e. a, e, I, o, u. In such case, we simply put es. Sage, sage, plays, plays. जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में स्वर प्लस y हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत हो y से हो, लेकिन y से पहले कोई स्वर हो, जैसे a, e, I, o, u, ऐसे में y के बाद केवल s का प्रयोग होता है। आइए अब शुरुआत करें वाक्यों की। हिंदी वाक्य, इंग्लिश सेंटेंस, कमेंट्स। राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर वॉक। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ es लगा, गोज बना। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए प्ले के साथ यस नहीं लगा। अमर मेरे साथ रहता है, अमन लिव्स विथ मी। सब्जेक्ट अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लाइव के साथ यस लगा है। हम हंसते हैं, बी लाफ। सब्जेक्ट बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए लाफ के साथ यस नहीं लगता। घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुंड। सब्जेक्ट ब्लड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ओज के साथ यस लगा है। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। रूल सब्जेक्ट प्लस डज, डू नॉट, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्य, राम घूमने नहीं जाता, राम डज नॉट गो फॉर वॉक। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया है। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया है। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते, द पीपल डू नॉट लिव विथ मी। सब्जेक्ट दे पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया। अंकल मुझसे नहीं मिलते, अंकल डजंट मीट मी। सब्जेक्ट अंकल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया है। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स WH फैमिली प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली है, जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वे सबसे पहले ही प्रयोग की जाती हैं। हिंदी वाक्य, क्या राम घूमने जाता है, डज राम गो फॉर वॉक। इंग्लिश सेंटेंस, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वह स्टेज पर नाचती है, डज शी डांस ऑन द स्टेज। अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, व्हाई डज अमन लिव्स विथ यू। वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं, सिंस व्हेन डू द चिल्ड्रन लिव विथ यू। हम कब तक साथ खेलते हैं, अनटिल व्हेन डू वी प्ले टुगेदर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। रूल WH फैमिली डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य इंग्लिश सेंटेंस, क्या राम घूमने नहीं जाता, डज राम नॉट गो फॉर वॉक।
पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? विच गेम डू यू नॉट प्ले? मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम हर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूं आदि। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रोल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। हिंदी वाक्य। राम स्कूल जा रहा है। इंग्लिश सेंटेंस। राम इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। वह घूमने जा रहा है, ही इज गोइंग फॉर वॉक। सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए एम लगा है। मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है, माई हार्ट इज लुकिंग फॉर यू। सब्जेक्ट माई हार्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। सब्जेक्ट पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए आर लगा है। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य। राम घूमने नहीं जा रहा है। इंग्लिश सेंटेंस। राम इज नॉट गोइंग फॉर वॉक। ओ कहीं नहीं जा रहे हैं, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग टुडे। लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली है जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती हैं। हिंदी वाक्य एग्जाम्पल। क्या वह घूमने जा रहा है? इज ही गोइंग फॉर वॉक। इंग्लिश सेंटेंस। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। ओ बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं? वेयर आर दोज चिल्ड्रन प्लेइंग विथ यू। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। डब्ल्यू एच फैमिली इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं जा रहा? इज राम नॉट गोइंग फॉर वॉक। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई इज अमन नॉट टॉकिंग। वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, घूम लिया है, चुका हूँ, उसने गलती की है, हमने किताबें दी है आदि। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुकी है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रोल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य। राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगा है। मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन द वर्क और आई हैव वर्क। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। हमने तुम्हें देख लिया है, वी हैव सीन यू। सब्जेक्ट बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। मैंने उसे एक किताब दी है, आई हैव गिवन हिम अ बुक। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। उन बच्चों ने राम से पैसे लिए, दो चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम राम। सब्जेक्ट दो चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी, दैट गर्ल हैज परचेड अ स्कूटी। सब्जेक्ट दैट गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगा है। नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य। हमने तुम्हें नहीं देखा, वी हैव नॉट सीन यू। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी, आई हैवंट गिवन हिम एनी बुक। अरनबी ने पैसे नहीं लिए, अरनबी हैज नॉट टेकन द मनी। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग आदि प्रयोग हो तो ओ तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। लाइक दैट। हिंदी वाक्य क्या राम घूमने गया है? हैज राम गॉन फॉर वॉक? अमन ने किताब क्यों ली? व्हाई हैज अमन टेकन द बुक? ओ दोनों कहाँ गए हैं? वेयर हैव दे बोथ गॉन? नेगेटिव इंटरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। रूल WH फैमिली हैज है प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य मैंने क्या किया है? व्हाट हैव आई डन? क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया? हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे? अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी? व्हाई हैज अमन नॉट परचेज्ड द बुक एट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया जाता है, और ध्यान रहे समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ आदि। समय के बारे में बताने के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए यानी अवधि ड्यूरेशन के लिए होता है। नियम यूजेज निश्चित समय के साथ प्रयोग होता है जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। सिंस रेफर टू पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। उदाहरण सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, etc. Since 1998, 2005, 2009, 2012, etc. Since Monday, Tuesday, Sunday, since morning, evening, afternoon, night, since yesterday, day before yesterday, since childhood birth, since that day, since my dad was born. I have been studying since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। He has been trying since Monday. वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। फॉर यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। उदाहरण फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries, etc. फॉर ए लॉन्ग काफी देर से, फॉर ए व्हाइल कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, हावर, मंथ, ईयर, etc. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रूल्स सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का। हिंदी वाक्य राम 2 घंटे से घूम रहा है। दैट मीन्स राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन लगा दिया। वहाँ 4 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन लगा दिया। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन लगा दिया। वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है। ही हैज बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज बीन लगा दिया। बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन वाचिंग दिस सीरियल फॉर मैनी डेज। सब्जेक्ट चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन लगा दिया। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट है प्लस हैव नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सिंस हिंदी वाक्य राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो ओ तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है? व्हाई हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। मैं कब से गाना गा रहा हूँ। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग। निगेटिव इंटरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक WH फैमिली हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING,
प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। इस टेंस में कभी भी है, हैं, हूँ या फिर था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया आदि। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक जैसे होते हैं। हिंदी वाक्य, राम घूमने गया, राम वेंट फॉर वॉक, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। वे उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, रोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट। मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम हर, लव्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लव। उसने गलती की, ही सी मेड अ मिस्टेक, मेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक। लोगों ने हमसे बात की, पीपल स्पोक विथ अस, स्पोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्पीक। हमने किया, वी डिड, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तुमने खाना खाया, यू एट द फूड, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इट। नेगेटिव सेंटेंस, राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर ए वॉक। रूल्स इसके नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसने एक पत्र नहीं लिखा, he did not write a letter, मैंने उसे प्यार नहीं किया, I did not love him her। लोग स्टेज पर नहीं गए, people did not go on stage। उसने गलती नहीं की, he she did not make a mistake। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। रूल, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वे सबसे पहले ही प्रयोग की जाती हैं। एग्जाम्पल, क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर वॉक। उसने पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर। हमने गलती कब की, व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। नेगेटिव इंटरोगेट नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, डिड आई नॉट लव हर। लोग स्टेज पर कब तक नहीं नाचे, अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज। उसने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड ही नॉट डू सो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था आदि। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग। हिंदी वाक्य, मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर वॉक। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज का प्रयोग किया गया। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। सब्जेक्ट पीपल थर्ड पर्सन, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वेयर लगाया गया। वह पत्र लिख रही थी, सी वाज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगा है। निगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वाज नॉट गोइंग फॉर वॉक। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, इसका ध्यान दें। हिंदी वाक्य, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग। वह क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, वेयर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। WH फैमिली वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, व्हाई वाज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग। क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या यशी नहीं लिख रही थी, वाज यशी नॉट राइटिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस इस टेंस से की मुख्य पहचान है क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी इत्यादि वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम चुका था, सीता ना चुकी थी, लोग घूम चुके थे, मैं घूम चुका था आज। अगर मैं कहूँ मुझे घड़ी मिली थी तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुकी या गई थी, मिल गई थी। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य रोज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्य राम घूमने जा चुका था, राम हैड गॉन फॉर ए वॉक। मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर ए वॉक। लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। निगेटिव नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, स्टूडेंट हैडंट डन द होमवर्क। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यू एच फैमिली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग इनका किया जाता है। एग्जाम्पल क्या राम जा चुका था, हैड राम लेफ्ट। उसने पत्र क्यों लिखा, व्हाई हैड शी रिटन अ लेटर। मैंने काम किसके लिए किया था, फॉर होम हैड आई डन द वर्क। निगेटिव इंट्रोगेट नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यू एच फैमिली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन फॉर ए वॉक। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, हैड पीपल नॉट डांस ऑन द स्टेज। उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, अंटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटन द लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया जाता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था आदि समय के बारे में बताए जाने पर सिंस और फार का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात अवधि ड्यूरेशन के लिए। कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फार का प्रयोग होगा यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर पढ़ाते वक्त बताया गया था। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। हिंदी वाक्य एग्जाम्पल राम 2 घंटे से घूम रहा था। इंग्लिश राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ रहा। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। समय 2 घंटे, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यू एच फैमिली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली है तो जैसा कि पहले बताया कि इनको पहले रख देते हैं। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग सिंस व्हेन हैड बीन वेटिंग फॉर मी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक में एग्जाम्पल फार्मूला वही है। डब्ल्यू एच फैमिली हैड सब्जेक्ट नॉट देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम्पल क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रही थी। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गागेगी का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमने जाएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे आज। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य रूल सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बिल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल राम तुमसे मिलेगा, राम विल मीट यू। तुम घूमने जाओगे, पीपल विल गो फॉर ए वॉक। वह
तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। नकारात्मक सब्जेक्ट विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। लोग तुमसे घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर वॉक। वह तुम्हें कॉल नहीं करेगा, शी विल नॉट कॉल यू। इंट्रोगेटिव WH फैमिली विल सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम तुमसे कब मिलेगा, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपल गो। वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी, हाउ विल शी कॉल। नकारात्मक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई विल राम नॉट मीट यू। क्या लोग तुम घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर। क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, विल शी नॉट कॉल यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी ING का प्रयोग होता है। राम घूमने जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग फॉर ए वॉक। वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वह प्रतियोगिता में नाच नहीं रही होगी, शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन। नेगेटिव नॉट का विल नॉट बी, ओ सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट स्लीपिंग। पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। इंट्रोगेटिव वाक्य में वाई फैमिली विल सब्जेक्ट बट ING ऑब्जेक्ट लाइक दैट। राम कहाँ सो रहा होगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। क्या वह घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी, व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग लाइक दैट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग नॉइज। क्या मैं सो नहीं रहा हूँगा उस वक्त, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट द टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस में हम क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, कि इत्यादि होता है। राम घूम चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी, और लोग घूम चुके होंगे, मैं घूम चुका हूँ, इत्यादि। रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम मार्केट जा चुका हो, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं इस समय तक खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्ले बाय नाउ। लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, पीपल विल हैव डांस ऑन द स्टेज। वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, शी विल हैव ऑन द कंपटीशन। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, राम मार्केट नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना। वह वहां नहीं गई होगी, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। इंट्रोगेटिव, विल फैमिली, वाई फैमिली, विल पहले, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लाइक दैट, ING। राम मार्केट क्यों गया होगा, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। क्या उसने तुम्हें कल देखा, विल ही हैव सीन यू यस्टरडे। लोग कल्पना से कब मिले होंगे, व्हेन विल पीपल हैव मेट कल्पना। वहाँ कैसे गई होगी, हाउ विल शी हैव गॉन देयर। आशा करता हूँ आपको हमारा यहाँ प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा, और इसके जो अगले चैप्टर हैं फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।